Remaining student, join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Okay, let's start the lecture. I will share the screen now. Next one part is the Viterbi algorithm. That is the related to the maximum likelihood the detection. So the Viterbi algorithm is an algorithm implemented using dynamic programming to detect the estimate sequence of the symbol in digital communication and signal processing. State diagram to represent the transmitted of the signal, that is the state diagram related to two states 1 and -1. Then 1 to 1 is the 2/1, and 1 to -1 is the 0/1. 1 to -1 is the 0-1, and 1 -1 related to -2/1. बेसिकली जो भी एल्गोरिथम है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ स्टेट डायग्राम से। दो स्टेट्स हैं, 1 और -1 स्टेट है। 1 से 1 के रिलेशन है, -1 से -1 का रिलेशन है, सेल्फ रिलेशन, एंड 1 का -1 से और -1 का 1 से रिलेशन। तो ये बेसिकली स्टेट्स का इनपुट आउटपुट स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है और रिलेशन है। The main principle for the Viterbi algorithm is that finding a noiseless output sequence with minimum distance from the detected noisy sequence of the symbols. It consists of certain number of recursion or the states. Basically, by using the Viterbi algorithm, find out the noiseless output sequence and with the minimum distance from the detected noise sequence of the symbol. तो basically जो भी state diagram बना रहे हैं, ये particular जैसे ये वाला state diagram है, तो दो स्टेट्स के रेस्पेक्टिव अपने को मिनिमम डिस्टेंस आइडेंटिफाई करनी है और नॉइजलेस स्टेटस आइडेंटिफाई करना है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ रिकर्शन और द स्टेजेस। Viterbi algorithm, at each recursion there are the three main steps that must be done to achieve maximum likelihood detection, sequence detection using Viterbi algorithm. Branch matrix generation is defined by this one. Okay. At the branch matrix generation is defined by the Bij I comma j comma n is equal to xn minus Cij whole square. Survivor path and the path matrix updates. The path matrix is the sum of the all branches matrix at a given state. The survivor path at a recursion for n, for recursion for state n, that is related to the defined by the m j comma n equals to minimum I comma n minus 1 plus b comma I b comma j comma n, मोस्ट लाइकली पाथ ट्रेस्ड बैक। बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है ये किससे रिलेटेड है? विटरबी एल्गोरिथम से। और विटरबी एल्गोरिथम का पर्पस क्या रहेगा? मैक्सिममली लाइकलीहुड सोर्स डिटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, सीक्वेंस डिटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। So these are the matrix formation. These are the matrix formation and defined by the Viterbi algorithm. नेक्स्ट द एग्जांपल से इसको एनालिसिस करें। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इसको एग्जांपल से आइडेंटिफाई करें। तो एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू कैसे आएगा? अज्यूम दैट द रिसीव्ड नॉइज सीक्वेंस इज xn इक्वल्स टू 0.05 0.05 2.05 -1.05 -2.00 and -0.05 and we have the following terray list diagram. This one is the terray list diagram. terray list diagram में क्या है? स्टेट 1 है, स्टेट -1 है एंड 1 to 1 रिलेशन है, -1 to -1 रिलेशन है। 1 to 1 रिलेशन को 2/1 से रिप्रेजेंट करा हुआ है। 1 को -1 से 0/-1 से रिप्रेजेंट करा हुआ है। -1 को 1 से 0/1 से रिप्रेजेंट करा हुआ है।
और -1 से 1 को -2 स्लैश -1 से रिप्रेजेंट करा हुआ। सो द फर्स्ट ब्रांच मैट्रिक्स एट द स्टेज 1, ब्रांच मैट्रिक्स फर्स्ट स्टेज 1 के लिए कैसे करेंगे, b, 1, 1, 1 दैट इज इक्वल टू x1 माइनस c11 का होल स्क्वायर। x1 इज गिवन, क्वेश्चन में गिवन है, x1 क्या है 0.05, 0.05 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ओके, दैट इज अ 3.8025। नेक्स्ट है सेकंड ब्रांच मैट्रिक्स है b -1 -1 1 दैट इज इक्वल टू x1 माइनस c -1 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0.05 प्लस 2 का होल स्क्वायर, that is 4.2025. Next, third one is the b1, -1, 1 that is the b is equals to b -1 1 1 is equal to 0.05 का होल स्क्वायर, that is equal to 0.0025। तो ये एक्चुअली क्या है, स्टेट डायग्राम के रेस्पेक्टिव ब्रांच मैट्रिसेस की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है बाय यूजिंग द विटरबी एल्गोरिथम। तो ये वाले जो फॉर्मूले हैं, इस वाले फॉर्मूले से बेसिकली जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले के रेस्पेक्टिव वैल्यू आइडेंटिफाई करनी, ये वाली मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला ये है, विटरबी एल्गोरिथम है, टू डिटरमाइन द ब्रांच मैट्रिक्स जनरेशन, ब्रांच मैट्रिक्स वैल्यूज b11, b -1 -1 1 and b1 -1 and 1, these are the branch matrices value identified by using the Viterbi algorithm. Next is the carrier recovery and symbol synchronization. In digital communication system, the output of demodulator must be sampled periodically once per symbol interval in order to recover the transmitted information. Since the propagation delay from the transmitter to receiver generally unknown at the receiver, symbol timing must be derived from the received signal in order to synchronously sample the output of the demodulator. So basically it is related to carrier recovery and symbol synchronization. Okay. The propagation delay in transmitted signal also result in carrier offset, which must be estimated at the receiver if the detector is phase coherent. Okay. The symbol synchronization is required in every digital communication system which transmit information synchronously. Carrier recovery is required if the signal is detected coherently. Basically यहाँ पर्पज है कि कोहेरेंसी या कैरियर रिकवरी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा कि ट्रांसमीटर सेक्शन एंड द रिसीवर सेक्शन बोथ आर सिंक्रोनाइज्ड विद रिस्पेक्ट टू कैरियर फ्रीक्वेंसी। जैसे फर्स्ट पॉइंट में बताया हुआ है, इन डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम द आउटपुट ऑफ द डिमोडुलेटर मस्ट बी सैंपल्ड पीरियडिकली, सैंपल्स करेंगे पीरियडिकली वंस पर सैंपल इंटरवल इन ऑर्डर टू रिकवर द ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन। बेसिकली जैसे डिमोडुलेटर या रिसीवर सेक्शन पे इनपुट में पर्टिकुलर सिग्नल आएगा विद नॉइज, मतलब मॉड्यूलेटेड सिग्नल है विद नॉइज के इंटरफेरेंस में चैनल से, और फॉर एक्चुअली रिसीव कहाँ होगा, रिसीवर पे या डिमोडुलेटर पर। तो डिमोडुलेटर के आउटपुट को क्या करना है, सैंपल्ड करना है पीरियडिकली टू रिकवर द ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन। जो अपन ने इनपुट में इंफॉर्मेशन दी है वही सेम इंफॉर्मेशन रिकवर करने के लिए अपन क्या करेंगे, सैंपलिंग प्रोसेस करेंगे। और सैंपलिंग कैसी होनी चाहिए, पीरियडिकली। जैसे अपन सैंपलिंग प्रोसेस ट्रांसमीटर सेक्शन पे काम मिलेंगे, सेम वही सैंपलिंग प्रोसेस अपन कहाँ मिलेंगे, रिसीवर सेक्शन पे। दोनों का जो सिंक्रोनाइजेशन है, दोनों का सिंबल पर इंटरवल है, सिंबल ड्यूरेशन है, वो सेम या कॉमन होना चाहिए। जैसे टीएस अगर अपन सैंपलिंग पीरियड अपन टीएस जो ट्रांसमीटर सेक्शन पे ले रहे हैं वही सेम सैंपलिंग पीरियड टीएस अपन कहाँ लेंगे, रिसीवर सेक्शन। तो बोथ आर द सिंक्रोनाइज, है ना। एनालॉग वाले केस में तो अपन कर रहे थे कोहेरेंट डिटेक्शन, सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी ले रहे थे। यहाँ अपन जैसा सैंपलिंग प्रोसेस कर रहे तो सैंपलिंग किसके रिलेटेड है, टाइम ड्यूरेशन के। तो दोनों केस में ट्रांसमीटर सेक्शन हो या रिसीवर सेक्शन हो, बोथ केसेस में सैंपलिंग पीरियड क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, टीएस। ओके, सेकंड पॉइंट को देखें, सिंस द प्रोपगेशन डिले from the transmitter to receiver is generally unknown at the receiver, symbol timing must be derived from the received signal in order to synchronously sample
द आउटपुट ऑफ द डिमोडुलेटर। बेस वही मेन कंसेप्ट है कि जो सैम्पलिंग प्रोसेस या जो सैम्पलिंग टाइम पीरियड या सैम्पलिंग रेट अपन ट्रांसमीटर सेक्शन पे ले रहे हैं, वही सेम टाइम सैम्पलिंग रेट या सैम्पलिंग ड्यूरेशन है वो रिसीवर सेक्शन पे लेना। तो जो ट्रांसमीटर सेक्शन है और रिसीवर सेक्शन है, बोथ आर हो गए सिंक्रोनाइजेशन। किसके रेस्पेक्टिव सिंक्रोनाइजेशन हुए? सैम्पलिंग रेट के रेस्पेक्टिव दोनों सिंक्रोनाइजेशन हुए। ओके, थर्ड पॉइंट और देखें, द प्रोपगेशन डिले इन द ट्रांसमिटेड सिग्नल आल्सो रिजल्ट इन कैरियर ऑफसेट व्हिच मस्ट बी एस्टिमेटेड एट द रिसीवर इफ द डिटेक्टर इज फेज कोहेरेंट। ऑब्वियसली दोनों के बीच में फेज कोहेरेंसी होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। symbol synchronization is required in every digital communication system. Obviously बात है symbol synchronization, that means are the symbol synchronization, sample synchronization, जो particular अपन sampling process से samples create कर रहे हैं, sample के respective symbol create कर रहे हैं, both are synchronized at the transmitter as well as the receiver section. So the carrier recovery is required if the signal is detected coherently. Obviously carrier recovery is required at the transmitter as well as the receiver section, because of that it both are provide the coherency between the transmitter and the receiver. Next is the binary PSK signal demodulator and detector. The carrier phase estimates is used in generating the reference signal GT cos 2 pi FCT plus 5 for the correlator. Obviously जब अपन को डिमॉड्यूलेटर या डिटेक्टर पे कोरिलेशन अपन क्रिएट करेंगे तो कैरियर फेस एस्टिमेशन इज यूज्ड इन जनरेटिंग द रेफरेंस सिग्नल। ऑब्वियसली यहाँ फेस का जो फैक्टर है या फेस का जो कंसेप्ट है वो इससे रिलेटेड है, दिस वन सेक्शन 5। ओके, so the carrier phase estimation is used to generating the reference signal for the correlator. The symbol synchronization control the symbol synchronizer control the sampler and the output of the signal pulse generator. The synchronization जो synchronizer है, synchronizer क्या provide करेगा? Synchronization between the transmitter section and the receiver section. सिंक्रोनाइजेशन किसके बीच में? सैंपल, जो सैंपल्स अपन क्रिएट कर रहे हैं, किस रेट से जो अपन सैंपल क्रिएट कर रहे हैं, तो रेट शुड बी सिंक्रोनाइज। ठीक है, सो द सिंपल सिंबल सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल द सैंपलर एंड द आउटपुट ऑफ द सिग्नल पल्स जनरेटर। ओके, if the signal pulse is rectangular then signal generator can be eliminated. अगर सिग्नल पल्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लें then signal generator can be eliminated. ये कंडीशन। इसके ब्लॉक डायग्राम को देखें। ब्लॉक डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले इनपुट में क्या है? रिसीव्ड सिग्नल है। रिसीव्ड सिग्नल को अपन ने किस में दिया है? इसमें रिसीव्ड सिग्नल को सबसे पहले दिया इधर कैरियर रिकवरी वाले सेक्शन पे। कैरियर रिकवरी के बाद इसको दिया है सिंबल सिंक्रोनाइजेशन वाले सेक्शन पे। कैरियर रिकवरी एंड सिंबल सिंक्रोनाइजेशन मोर इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द रिसीवर सेक्शन। नेक्स्ट रिसीव्ड सिग्नल अपन ने इस वाले सेक्शन में सीधा दिया। कैरियर सिंक्रोनाइजेशन से एक्चुअली क्या क्रिएट हुआ? जैसे ये सिग्नल पल्स जनरेटर है, सिग्नल पल्स जनरेटर है, जी ऑफ टी क्रिएट करा, कैरियर वाला सेक्शन दिया, फाइनली इसको अपन ने इसमें इनपुट में दे दिया। सो द GT cos ऑफ 2 pi CT प्लस 5। ओके, ये सिग्नल यहाँ दिया। ठीक है, नेक्स्ट सिंबल सिंक्रोनाइजेशन, ये अपन किसके सिंक्रोनाइजेशन किसके रेस्पेक्ट करा? सिंक्रोनाइजेशन क्या प्रोवाइड करेगा? सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीव सिग्नल, ट्रांसमीटर एंड रिसीव्ड सिग्नल, ये सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करेगा, ये कैरियर सिग्नल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन अपन में क्या दिया? पल्स जनरेटर दिया। पल्स जनरेटर को किससे मल्टीप्लाई किया? कैरियर रिकवरी से। कैरियर क्या है? cos 2 pi FCT प्लस 5। कैरियर रिकवरी में क्या आएगा? cos 2 pi FCT प्लस 5। और पल्स सिग्नल पल्स जनरेटर क्या जनरेट कर रहा है? GT। दोनों को मल्टीप्लाई करा, GT इंटू cos 2 pi FCT प्लस 5 और सिंपली यहाँ पे दे दिया इसको। फाइनली इसको किसमें दिया? इंटीग्रेटर में। इंटीग्रेटर के बाद सिंबल किसमें देना है? सैंपलर में। और सैंपलर के बाद किसमें देना है? डिटेक्टर में। डिटेक्टर एक्चुअली क्या होगा? यहाँ पे लो पास फिल्टर जनरली अपन काम में लेते हैं और आउटपुट क्या आ जाएगी? बिट सीक्वेंस आ जाएगी। ये इस तरह से फॉर्मेशन रहेगा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट एक्चुअली क्या बताया हुआ है? एक तो कैरियर रिकवरी बताया हुआ और सिंक्रोनाइजेशन बताया।
Synchronization is the most important factor are using to recover the original signal from the received signal. Synchronization होना बहुत जरूरी है. और carrier recovery that is provide the carrier waveform. यहाँ carrier waveform क्या रही है? cos 2 pi fct plus 5. और pulse कौन सी अपन जनरेट कर रहे हैं? gt. और सिंबल सिंक्रोनाइजेशन क्या करेगा? सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. बाकी जो तीनों सेक्शन है ये ऑलरेडी अपन स्टडी कर चुके हैं. ये इंटीग्रेटर हो गया, सैम्पलर हो गया और डिटेक्टर हो गया. ठीक है, तो ये वाला सेक्शन यहाँ इस तरह से आज ये कंप्लीट होगा. आज इसको पढ़ो, इसको देखो, और कोई डाउट हो, कोई इश्यू हो तो मुझसे भी पूछो. कोई इश्यू या कोई डाउट हो तो वो भी मुझसे आप डिस्कशन कर सकते हो. बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे. ठीक है, मैं अटेंडेंस लेता हूँ. फर्स्ट अनुजा. प्रेजेंट सर. अर्पित. प्रेजेंट सर. प्रेजेंट सर. रजनीश. प्रेजेंट सर. ठीक है ना? तो ये अपने मैं इसके डाल दूंगा, नोट्स भी तुम्हारे गूगल क्लासरूम पर डाल दूंगा. इससे ये एक्सक्यूज मी सर, मेरी अटेंडेंस रह गई. अच्छा रहेगी क्या? संतोष. यस सर. ठीक है बता. तो अभी क्या है, मैं जैसे इसके नोट्स है ना गूगल क्लासरूम पर डाल दूंगा, विटरबी एल्गोरिथम और इससे रिलेटेड. और ये कॉलेज ये वीडियो है ये कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे हुआ. तो इसको पढ़ो, इसकी स्टडी करो. कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कशन करो. ठीक. ओके, थैंक यू.